درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ الكبر عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم رضا ربي في رضا الوالد وسخط ربي في سخط الوالد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے تو انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام ہے تو عرفان محبت عام نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے بے حد فضل، کرم، احسان، شکر جس رب ذوالجلال نے اس پرفتن دور کے اندر، اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب اس کی اس پاگھر کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہماری حاضری کو بے حد قبول اور منظور فرمائے، ہمارے لیے دنیا کے اندر ہدایت کا اور آخرت کے اندر نجات کا، بخشش کا، مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے حقوق والدین کا عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم اس موضوع کو سنیں گے اور غور سے سنیں گے، اور سننے کے بعد ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے، ہم اپنی گریبانوں کے اندر جان کر اس چیز کو دیکھیں گے، اس چیز کو پرکھیں گے، کیا جیسے حقوق بیان کیے گئے ایسے حقوق ہم اپنے والدین کی ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو مبارک، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے، اگر نہیں کرتے ہیں تو ادا کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بھرپور کوشش کر کے والدین کے حق ادا کرنے ہیں۔ میں نے قرآن مجید کی 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کے 3 رکوع کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت چند احکامات توحید کے بعد والدین سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر علامہ قرطبی یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد والدین کے حقوق کو ملا کر بیان فرماتے ہیں۔
बुजुर्ग और दोस्तों, असल खालिक, असल मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, लेकिन दुनिया के अंदर आने का जरिया, दुनिया के अंदर परवश का जरिया, तरबियत का जरिया वालिदैन बनते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी रब है, माँ बाप मिजाजी रब है। कभी हमने गौर किया, कभी औलादों ने इस चीज के ऊपर गौर किया कि माँ बाप ने हमारे खातिर कितनी मुसीबतें, कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं? कभी औलाद ने इस चीज के ऊपर नजर डाली कि माँ ने इसको जन्म देते वक्त उस माँ के ऊपर क्या गुजरी है, उसको कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। वाले इसके बाप ने ना धूप देखी, ना सर्दी देखी, ना गर्मी देखी, ना रात देखी, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, सब कुछ बराबर इसकी क्या करता रहा, इसकी परवरिश के लिए कमाता रहा, इसकी खिदमत करता रहा, इस उम्मीद से कि जब ये बड़ा होगा तो मेरे चलने का सहारा बनेगा। आज मैं इसकी उंगली पकड़कर इसको चला रहा हूं, उस उम्मीद के साथ कल जब मैं उस आलम के अंदर पहुंचूंगा, जब मैं बुढ़ापे के अंदर पहुंच जाऊंगा, उस वक्त ये बच्चा मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाएगा। इस उम्मीद के साथ बाप अपनी बच्चे की क्या करता है, परवरिश करता है, उसकी खिदमत करता है कि एक वक्त आएगा मुझे खिदमत की जरूरत पड़ेगी। आज इसको खिदमत की जरूरत है, मैं इसकी खिदमत कर रहा हूँ। एक वक्त आएगा जब मुझे खिदमत की जरूरत पड़ेगी, उस वक्त ये बच्चा मेरा सहारा बनेगा। मगर अफसोस, सदा अफसोस, चंद ही साल गुजरते हैं, चंद ही वक्त गुजरता है, चंद ही लम्हात गुजरते हैं, औलादे अपने माँ बाप का क्या है एहसानात भूल कर बैठ जाती है, माँ बाप के एहसानात को भुला बैठती है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत वालिदैन के हकूक को नहीं भुलाता, एहसानात को नहीं भुलाता। अपनी इबादत के साथ फौरन जवाब क्या देता है, हुक्म देता है, मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ क्या करो जी, हुस्ने सलूक करो। सबसे पहले हुक्म दिया, मेरी इबादत करो, मेरे बगैर किसी के सामने मत झुको, किसी के सामने माथा मत टेको, मेरे बगैर किसी के सामने सजदा रेज मत हो, मेरी ही इबादत करो, सिर्फ मेरी ही इबादत करो। और उसके बाद हुक्म दिया, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, उनके साथ अच्छा मामला करो। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अहादीस मुबारका के अंदर आता है कि बाकी जो भी सजाएं हैं अल्लाह उनको चाहे तो क़यामत तक के लिए मुअख्खर कर दे कि उस गुनाह की सजा क़यामत के अंदर दे, मगर वालिदैन की नाफरमानी, वालिदैन की बेअदबी, वालिदैन की नाराजगी, वालिदैन का अदब एहतराम ना करना, खिदमत ना करना, इसकी जो सजा है वो क़यामत के दिन जरूर मिलेगी, मगर उससे पहले अल्लाह दुनिया ही के अंदर भी दे देता है। तजर्बा शाहिद है, तारीख गवाह है, आज तक जिसने भी माँ बाप को नाजायज सताया, तड़पाया, उनकी खिदमत नहीं की, उनको रुलाता रहा, वो चैन से जिंदगी नहीं गुजार सका। और जब उसकी बारी आई, जब वो बच्चा था तो उसने माँ बाप के साथ जुल्म किया, जब वो खुद बाप बना तो उससे बढ़कर इसकी औलाद ने उसके साथ बुरा सलूक किया है। मैं कहा करता हूं, वो एक बच्चा था, उसने अपने बाप को पकड़ा और पकड़ के घसीटा। जब बाप को बेटे ने पकड़कर घसीटना शुरू किया तो बाप ने नहीं बोला, जुबान से कुछ नहीं कहा। जब बच्चे ने बाप को पकड़कर कमरे से या हाल से घसीटकर दरवाजे की दहलीज पर पहुंचाया तो बाप ने कहा, बेटा बस कर। क्या कहा? बेटा बस कर। जब पकड़ा था या कोने से पकड़ा या दरमियान से पकड़ा था, जब पकड़ा और घसीटा उस वक्त बाप नहीं बोला। जब बाप को बेटा घसीट कर दरवाजे की दहलीज पर ले गया तो बाप ने कहा, बेटे बस कर। तो बेटे ने कहा, बाजार जब मेरे आपको उस वक्त पकड़ा, उस वक्त घसीटा तो आप उसी वक्त कहते कि मुझे मत पकड़ो, मुझे मत घसीटो, लेकिन जब मैंने आपको पकड़ा आप उस वक्त नहीं बोले, जब मैंने आपको घसीटा आप उस वक्त नहीं बोले, जब मैंने आपको दहलीज पर पहुंचाया, दरवाजे की दहलीज पर, तो आपने कहा बस कर, ये माजरा क्या है? तो बाप ने कहा, बेटे मैंने भी अपने बाप को घसीट कर यहीं तक लाया था, इससे आगे नहीं लिया था, लिहाजा तुमने भी मुझे पकड़कर यहां तक लाया, अब बस करो।
ऐसा होकर रहेगा। एक बूढ़े बाप ने बेटे से पूछा, बेटे बताओ ये दीवार पर क्या बैठा है? कहा कौवा बैठा है। क्या करता है? कहा काई काई करता है। दोबारा फिर पूछा, बेटे बताओ ये दीवार पर क्या बैठा है? कहा अब्बा जान कौवा बैठा है। क्या करता है? काई काई करता है। वो बड़ा जबरदस्त खानदान का बच्चा था, तब 3 बार सवाल के जवाब दे गया। आज का होता तो पहली मर्तबा दूसरी मर्तबा जवाब देने की बर्दाश्त नहीं करता। बाप ने फिर पूछा, बेटे ये क्या है? दीवार पर क्या है? या शाख पर क्या बैठा है? कहा अब्बा जान कौवा बैठा है। क्या करता है? काई काई। फिर चौथी मर्तबा बाप ने पूछ लिया, बेटे क्या है? कहा अब्बा जान बताया जो कौवा है काई काई करता है, बार बार क्यों पूछते हो? फिर बाप को अपना जमाना याद आया। बाप ने कहा, बेटे एक वक्त तू छोटा था, तूने मुझसे 20 मर्तबा यही सवाल किया था, मैंने 20 मर्तबा यही जवाब दिया था, बेटे ये कौवा है, ये काई काई करता है। मैंने तुझे 3 मर्तबा पूछा तो तुमने कहा अब्बा जान बस करो, कोई और काम कर लो। बुजुर्गों, आज हम देखें माशरे के अंदर वालिदैन के साथ क्या शुरू किए जाते हैं, वालिदैन को किस कदर तड़पाया जाता है। वालिदैन को बसा औकात कहीं कहीं जगह तो घरों से निकाला गया, धक्के दिए गए। और बुजुर्गों, वालिदैन की मैं कहा करता हूं, अगर वालिदैन की कोई बात नागवार गुजरे, खामोशी इख्तियार करना उस वक्त बेहतर है, उलट कर जवाब देना। कुरान ने दरकनार इसको दूर कनार, कुरान ने कहा फला तकुल्लहुमा उफ्यू वला तनहरहुमा, कि उनको उफ तक मत कहो। जवाब तो देना दूर की बात है। एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है? आपने जवाब में इरशाद फरमाया, नमाज को अपने मुस्तहब वक्त के अंदर अदा करना। फिर पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद कौन सा अमल है? फरमाया, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। और एक हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है, चाहे तो उसकी हिफाजत करो चाहे तो उसको जाया कर दो। यानी जो औलाद अपने बाप की खिदमत करती है, अदब एहतराम करती है, उसकी इज्जत करती है, उसकी खिदमत करती है, उस दरवाजे की हिफाजत करती है। और जो बेअदबी करता है, जो उनको नाराज करता है, जो उनको सताता है, वो उस दरवाजे को जाया कर देता है। और नबी अलैहिस्सलाम ने माँ के बारे में फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक मर्तबा किसी जगह उस्ताद पढ़ा रहा था, बच्चों से कहा, बेटे कल आप जन्नत के अंदर से मट्टी उठा कर लाना। क्या करना? जन्नत से मट्टी उठा कर लाना। एक बेटे ने कब्रिस्तान से उठाकर मट्टी ले गया, एक ने किसी से कहीं जगह से ले गया, और एक बेटे ने मां के कदमों से मट्टी उठाकर ले गया। उसने ये सुना था, उसने ये पढ़ा था कि जन्नत दुनिया के अंदर कहीं अगर है तो वो कहाँ है? मां के कदमों के नीचे है। पूछा, बेटे आपने कहां से लाई? कहा मैंने जन्नत से लाई। कहा जन्नत कहाँ है? कहा मेरे नबी का फरमान है, जन्नत मां के पैरों के नीचे है। बाप के बारे में क्या हुक्म दिया? क्या है? जन्नत का दरमियानी दरवाजा। और मां के बारे में कहा जन्नत मां के पैरों के नीचे है। दोनों के साथ उसने सलूक करना है। अगर बसा औकात फॉर एग्जाम्पल किचन के अंदर कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, वहां बीवी भी मौजूद है, माँ भी मौजूद है, वहां बीवी को नाराज कर दो, माँ को खुश करो, और जब अलग थलग हो उस वक्त बीवी को राजी कर लो। उस वक्त जब दोनों अगाटी हो उस वक्त क्या करो? माँ को नाराज करो या बीवी को? बीवी को नाराज करो, माँ को खुश करो। जब अलग हो जाओ उस वक्त बीवी को मना लो, उसको राजी कर लो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो, उस शख्स की नाक खाक आलूद हो 3 मरतबा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शख्स की? फरमाया, उस शख्स की जिसके सामने वालिदैन एक या दोनों बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए, उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार ना बना सके।
इब्न माजा के अंदर हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से एक रिवायत उन्होंने नकल की है कि नबी अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलाद पर माँ बाप के क्या हक है? फरमाया वो दोनों ही उसके लिए जन्नत है या जहन्नम है। मतलब ये है, अगर खिदमत करता है तो जन्नत में उनकी खिदमत ले जाएगी, अगर नाराज करता है, दुख देता है, तकलीफें देता है, तो वो नाराज करना, वो दुख देना, वो तकलीफ देना उसको जहन्नम के अंदर ले जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर चाहे माँ बाप ने बच्चे पर जुल्म किया हो तो क्या इस सूरत में भी जहन्नम की वईदें हैं? फरमाया वाइन ज़लमा वाइन ज़लमा वाइन ज़लमा, 3 मरतबा फरमाया, हाँ अगर चाहे जुल्म किया हो, हाँ अगर चाहे जुल्म किया हो, हाँ अगर चाहे जुल्म किया हो, माँ बाप की नाराजगी इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। और अगर माँ बाप ने बच्चे पर जुल्म किया है, करते तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर किया है, उस वक्त भी हुक्म ये दिया गया कि औलाद को माँ बाप से इंतकाम लेने का कोई हक नहीं है। अगर चाहे जुल्म किया हो, वैसे करती तो नहीं है, लेकिन अगर किया हो तब भी उनसे इंतकाम लेने का हक शरीयत ने औलाद को नहीं दिया। तो बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे मकामात पर अपनी इबादत के साथ वालिदैन के हकूक को जोड़कर बयान फरमाया है। एक मकाम पर इरशाद फरमाया है, अनिश्कुरली वलिवालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और साथ साथ अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। पैदा करने वाली जात तो अल्लाह की है, लेकिन दुनिया के अंदर आने का जरिया, दुनिया के अंदर आने का वसीला जो है वो माँ बाप बनते हैं। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाहि अलैहि ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत नकल की है कि एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप ने मेरा सारा माल छीन लिया। आपने फरमाया अपने माँ बाप को बुलाओ, वालिदैन को बुलाओ। थोड़ी देर ही गुजरी थी, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हाजिर खिदमत हुए। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इसका बाप आए ना आपकी खिदमत में, तो आप उससे ये पूछना कि वो अल्फाज क्या थे जो आपने दिल ही दिल में कहे थे, अभी उनकी खबर आपके कानों तक नहीं पहुंची थी, अल्लाह ने सुन लिए थे, जरा वो अल्फाज हमें सुना दो। बाप आता है तो बाप से नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या बात है, आपका बेटा आपकी शिकायत कर रहा है। तो बाप ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसी से खुद पूछ ले, इसकी फूफी या इसकी खाला या अपने नफ्स के बगैर में कहां में खर्च करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, वो अल्फाज कह दो जो तुम्हारे दिल ही के अंदर निकले थे, अभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचे थे, अल्लाह ने सुन लिए थे, जरा वो अल्फाज क्या है हमारे सामने उन अल्फाज को दोहरा दो। बाप ने क्या शिकवा किया, क्या गिला किया, कहा वाकया मेरे दिल से उस वक्त कुछ अशआर निकले थे जो बड़े ही दर्द भरे थे, दुख भरे थे। वो क्या? वो ये कि मेरे बेटे, जब तू पैदा हुआ हमने तुम्हारी परवरिश की, हमने तुम्हें पाला पोसा, जब तू रात को बीमार हो जाता था, तेरी बीमारी की वजह से हम रातों रात तड़पते थे, हम सोते नहीं थे। तेरी बीमारी ऐसा लगता था हमारी बीमारी है, जब तू रातों को रोता था हम तुझे लोरियां सुनाते थे, तेरे रोने की वजह से हम भी आराम नहीं करते थे, हमने तुम्हारे खातिर क्या कुछ नहीं किया। और इस उम्मीद से कि तू बड़ा हो जाए, फिर जब हमें खिदमत की जरूरत पड़े तू हमारी खिदमत करे। लेकिन अफसोस, जब तू बड़ा हुआ तू ऐसा बदतमीज हुआ, तू ऐसा बेअदब हुआ कि तुम्हारी जुबान छुरी के तरह चलने लगी। तुमने मेरा जो हक था वो अदा नहीं किया, जो मुझे हक देना था वो नहीं दिया। कहा कि अफसोस, कम अज कम इतना हक तो देते जो एक क्या बोलते हैं, एक शरीफ पड़ोसी अपने पड़ोसी को देता है। कहा इतना हक तो मुझे देते, अगर बाप होने का हक अदा नहीं कर सकते थे, इतना हक तो मुझे दिया जाता जो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देता है। इतना हक था तो मेरा, लेकिन नहीं दिया तुमने।
नबी अलैहिस्सलाम ने उसका गिरबान पकड़ा और पकड़ कर कहा, जाओ तुम भी और तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का है। तो बुजुर्गों, माँ बाप के बड़े एहसानात हैं औलादों के ऊपर, जिनको पूरा करना शायद ही मुश्किल है, नामुमकिन है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचें अदा नहीं हो सकते तो अदा ही करने छोड़ दे। कोशिश करनी है, कोशिश करनी है या नहीं करनी, कोशिश करते रहना है। उनकी खिदमत के अंदर लगे रहना है। आज क्या क्या सिला देती है औलाद माँ बाप को। माँ बाप ने क्या कुछ किया बेटे के खातिर, आज उल्टा सिला दिया जाता है। आज कहीं घरों के अंदर माँ बाप रोते हैं औलाद की वजह से। लेकिन इंशाअल्लाह उल अजीज मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, किसी आम लड़के ने तो अपने माँ बाप को घर से निकाला होगा। कभी आपको दुनिया के अंदर ये नौबत नहीं मिलेगी कि एक हाफिज कुरान ने माँ बाप को घर से निकाला। ये कभी आपने सुना या देखा आपने? ये वजह क्या है कि उस माँ बाप का बड़ा एहसान है कि उसने अपने बच्चे को कुरान की तालीम दिलाई थी। जब बच्चे ने कुरान पढ़ा तो बच्चे को पता चला मेरे माँ बाप की मुझ पर क्या हक है। लेकिन यहाँ दूसरे बच्चे ने जो आम था, उसने माँ बाप को घर से निकाला। उसके पीछे माँ बाप की गलती थी, माँ बाप ने उनको कुरान की तालीम नहीं दिलाई। अगर तालीम दिलाई होती तो ऐसी नौबत इंशाअल्लाह उल अजीज नहीं आती। अगर उसने पढ़ा होता कुरान, उसने अहदीस पढ़ी होती, उसको पता होता माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, तो फिर वो माँ बाप को ऐसे ही धक्के देके घर से ना निकालता। मगर इसके कसूरवार तो माँ बाप हैं जिन्होंने कुरान की तालीम बच्चे को नहीं दी। हमारे यहाँ भी कई बच्चे हैं बुजुर्गों ऐसे हैं जिनको मैंने जिंदगी में एक मर्तबा मकतब के अंदर नहीं देखा। वो कुरान से दूर हैं। तो यह जाहिर सी बात है, जब वो बड़े होंगे तो यही सलूक करेंगे माँ बाप के साथ। इसलिए बच्चों को कुरान की तालीम देनी है, कुरान पढ़ाना है। बच्चे कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा अल्लाह ताला क्या बयान फरमाते हैं कि मेरी इबादत करो, उसके बाद अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। तारीख गवाह है, तजर्बा शायद है, जिसने भी माँ बाप को क्या किया, नाजायज दुख दिया, माँ बाप को सताया, रुलाया, वो सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सका। हजरत अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी है। आखिरी वक्त है, जुबान के ऊपर कलमा जारी नहीं हो रहा, सहाबा तलकीन कर रहे हैं। ये हालत देखने के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में चले जाते हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलकीन करने के बावजूद भी बिलाल की उसकी अलकमा की जुबान पर कलमा नहीं जारी हो रहा। पूछा क्या उसके वालिदैन जिंदा हैं? फरमाया माँ हयात है। कहा उनसे जाकर कहो आप मेरे पास आएंगी या मैं आपके पास आ जाऊं। बिलाल ने जाकर उसकी माँ से कहा, अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा से कहा, नबी अलैहिस्सलाम यूं फरमाते हैं। तो उसने कहा मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं खुद उनकी खिदमत में हाजिर हूँ। डंडे का सहारा लिया, बुढ़ापे के आलम में थी इनकी माँ। डंडे का सहारा लिया, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत पे पहुंची, सलाम किया, बैठ गई। पूछा अलकमा का क्या मामला है, अलकमा कैसा था, उसके हालात कैसे थे? कहा तहज्जुद गुजार था, रोजे रखता था, नमाजें पढ़ता था, जो सहाबी थे। पूछा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुकात थे, कैसा उससे सलूक था? कहा मैं उससे नाराज हूं। कहा यही वजह है कि अलकमा की जुबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा। कहा नाराज क्यों है? नाराज होने की वजह अलकमा की वालिदा फरमाती है वो अपनी बीवी की ज्यादा सुनता है, मेरी नहीं सुनता। वो बीवी की ज्यादा मानता है, मेरी नहीं मानता। वो बीवी की बात के ऊपर ज्यादा तरजीह देता है, मेरी बात के ऊपर तरजीह नहीं देता। क्या यही वजह है जिसकी वजह से कलमा उसकी जुबान पर जारी नहीं हो रहा? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलकमा को माफ कर दो। माँ ने कहा मैं हरगिज़ उसे माफ नहीं करूंगी, उसने मेरा दिल दुखाया है। वो पूरी जिंदगी बीवी की सुनता आया है, मेरी सुनी ही नहीं, उसको माफ नहीं करूंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल जाओ लकड़ियां इकट्ठी करो, हमने अलकमा को इसके अंदर जलाना है। माँ कहती है, माँ की ममता जाग उठी। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप माँ के सामने उसके बेटे को जलाओगे? कहा इससे ज्यादा जहन्नम की आग खतरनाक है।
اگر آپ اس کو معاف نہیں کرو گی تو وہاں جلے گا، بہتر ہے یہاں معاف کر دو۔ کہا میں اللہ کو، آپ کو، حاضرین مجلس کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کیا، میں علقمہ سے راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جا کر دیکھو۔ بلال دروازے پر پہنچے ہیں، اندر سے کلمہ پڑھنے کی آواز آتی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ خود پڑھائی، قبرستان کے اندر ایک واعظ فرمایا، تقریر فرمائی، اس کے اندر فرمایا اے مہاجرین و انصار کی جماعت سن لو، جو شخص ماں سے زیادہ اپنی بیوی کی بات کے اوپر ترجیح دے گا، اللہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کے فرض قبول ہے نہ نوافل قبول ہے۔ جو شخص کیا کرے گا؟ بیوی کی بات کے اوپر زیادہ ترجیح دے گا، ماں کی بات کے اوپر ترجیح نہیں دے گا، نہ اس کے فرض قبول ہے نہ اس کے نوافل قبول ہے۔ تو ایک بندہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، وہ صرف رمضان کے نہیں بلکہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے، پوری رات نوافل کے اندر گزارتا ہے، وہ اچھے سے صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ بڑا سخی بندہ ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یہ سارے اعمال اس کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے، یہ سارے اعمال جہنم سے نہیں بچانے کے لیے کافی ہوں گے جب تک ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا۔ اس لیے بزرگوں کوشش کی جائے ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارے والدین کے دل کو ٹھوس پہنچے۔ ہاں ایک جگہ ماں باپ کی نافرمانی آپ کا اولاد کر سکتی ہے، اگر ماں باپ اس کو دین سے روکیں، اس کو نعوذ باللہ کہیں کہ تم خدا کے ساتھ شرک کرو یا تم دین کو چھوڑ دو، تو وہاں نافرمانی کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ بچے جو ماں باپ کے سامنے ہمیشہ جھکے رہتے ہیں، وہ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ بزرگوں یہ معاملہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں گے، واللہ اگر قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے ایسا معاملہ نہیں آئے گا کہ بیٹا اپنے باپ کے پاؤں دبا رہا ہے، بلکہ ایسی نوبت آئے گی کہ بیٹا باپ کا گلا دبا رہا ہے۔ اگر اولاد کو قرآن کی تعلیم نہ دی ایسی نوبت نہیں آئے گی، بچہ ماں باپ کے پاؤں دباتا ہے، تعلیم نہ دی قرآن کی تو ایسی نوبت انشاءاللہ لگتا ہے ضرور آئے گی کہ بچہ باپ کا گلا دبا رہا تھا، اور کہیں جگہ دبایا بھی بچوں نے۔ آپ سنتے ہوں گے نیوز کے اندر، خبروں کے اندر، فلاں جگہ اولاد نے ماں باپ کو مار ڈالا، آگ ڈال کے جلا دیا، گھر سے نکال دیا، دھکے دے دیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اس کے قصوروار یہ لوگ کون تھے، مجرم کون تھے؟ اس کے ماں باپ جنہوں نے اس کو قرآن سے دور رکھا، قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ یہ جو اس وقت میں بول رہا ہوں نا بزرگوں، یہ اللہ کا فضل اور ماں باپ کے احسانات ہے کہ انہوں نے مجھے قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا، میری زبان پر والدین کے حقوق آ رہے ہیں، ورنہ مجھے تو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں کیا ہوں، میرے ماں باپ کے مجھ پر کیا حق ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے قرآن پڑھ کے۔ اس لیے بزرگوں اپنی اولاد کو قرآن سے جوڑیں گے نا، خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے، اولاد کو بھی قرآن سے جوڑیں گے، تو بزرگوں میں والدین سے یہ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ والدین یہ نہ سوچے کہ ہمارے ہی حق ہے اولاد کے اوپر، نہ، انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کو اولاد کے کیا حق ہے ماں باپ پر وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ماں باپ یہ سننے کے بعد یہ نہ سوچے کہ ہماری ہی حق ہے اولاد پر، ان کے ہم پر نہیں ہے، نہیں، ماں باپ کے بھی اولاد پر حق ہے، اولاد کے بھی ماں باپ پر حق ہے۔ تو آج اولادوں کے سامنے یہ چیپٹر آیا، یہ موضوع آیا، یہ عنوان آیا، یہ ٹاپک آیا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کے کیا کیا حقوق ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ پھر رہی زندگی یہ موضوع آپ کے سامنے آئے گا کہ ماں باپ کے اوپر اولاد کے کیا حق ہیں۔ تو پھر ہم اس وقت سوچیں گے، گریبانوں کے اندر جھانکیں گے، اس وقت دیکھیں گے کیا ہم نے اپنی اولاد کا حق ادا کیا ہے۔ تو آج ہم یہ سوچیں، اولاد بالخصوص ہم نے جنہوں نے یہ سنا کہا کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کی کیا حقوق ہیں، تو یہ سننے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے
کہ کیا ہم ماں باپ کے حق ادا کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے، مبارک ہو. اگر نہیں کرتے تو حق ادا کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. جیسا صلہ ہم ماں باپ کے ساتھ کریں گے ایسی ہی کل اولاد ہمارے ساتھ کرے گی. اچھا صلہ کریں گے تو اولاد ہمارے ساتھ اچھا صلہ کرے گی. تو برا صلہ سلوک کریں گے، برا صلہ دیں گے تو برا ہی سلوک ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ کرے گی. یہ طے شدہ بات ہے. تو انشاءاللہ العزیز رہی زندگی اگلے جمعہ کے اولاد کے حق بیان کیے جائیں گے کہ اولاد کے ماں باپ کے اوپر کیا حقوق ہیں. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ سے دعا ہے جو کہا گیا جو سنا گیا اللہ پاک اس کو قبول فرمائے. ہم جو اولادیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں.